we are going to understand about the antibody. Now, antibody is synthesized by B cells, specifically by plasma cells. The structure of antibody. Now, it is Y-shaped molecule. It contains two identical antigen binding sites. That's what known as bivalent. They contains four polypeptide chains. They are heterodimer and they consist light chain and heavy chain. We can see in figure, this is a light chain, this is a light chain, this is a heavy chain. Okay. Each light chain is bound to heavy chain with the disulfide bridges and non-covalent linkage. Now each light chain, this light chain is joined to this heavy chain with the help of disulfide bond. Alpha, that is a kappa and lambda, are light chain. Kappa and lambda are the two types of light chain, while this heavy chains has or H chain has five types, mainly alpha, lambda, delta, epsilon and gamma. Our heavy chains are called as isotypes. Light chains have constant region. These light chains have what? Constant regions about 110 amino acids long, and variable regions are under heavy chains. This variable region is present in the heavy chains around. It also contains around 110 amino acids. Mainly there are five classes for antibodies, that is antibody G, antibody A, antibody M, antibody D and antibody E. Now see what we have to remember here: the light chain and heavy chain, the disulfide bridge which is present in between these L chain and heavy chain, and the another important point, that is the papain cleavage site is present here, that we have to remember. And these antibodies are glycoprotein in nature, and the L chain lack carbohydrate, means L chain do not contain carbohydrate and all that stuff, but heavy chain contains the carbohydrate structure. So this is all about the antibody basic structure. अब हम पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के बारे में. First time, Porter found that proteolytic treatment with the enzyme papain split immunoglobulin molecule into three fragments about equal size. पोर्टर ने कहा था कि जब हम एंटीबॉडी को प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ पपाइन एंजाइम, देन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तीन फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है और उसकी साइज इक्वल होती है. दो फ्रैगमेंट हमें मिलते हैं फैब के, एंड एक फ्रैगमेंट मिल जाता है एफ सी रीजन का. फैब फ्रैगमेंट का मोलिकुलर वेट अराउंड 40,000 डाल्टन होता है, हालांकि एफ सी फ्रैगमेंट का वेट अराउंड 50,000 डाल्टन होता है. Edelman discovered that when globulin was reduced by treatment mercaptanol, it gives us two Fab fragments 53,000 Dalton weight and two FC fragments with 22,000 Dalton weight. सो इन दोनों साइंटिस्ट ने डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी किया था. यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जब हम पपाइन से इसको ट्रीट करते हैं, इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते, तो हमारे पास कितने फ्रैगमेंट्स आते हैं? टोटल 3 फ्रैगमेंट आते हैं, 2 एफसी के और एक एफसी के एंड 2 फैब के. यहाँ पे अगर पेप्सिन के साथ ट्रीट करते हो हमारे पास दो इक्वल फ्रैगमेंट आते हैं, 2 एफसी के और 2 फैब के. अब हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज. तो यहाँ पे 5 क्लासेस है एंटीबॉडीज़ की: एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी एंड एंटीबॉडी ई. पहले हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी जी के बारे में. एंटीबॉडी जी को इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी कहा जाता है. हालांकि एंटीबॉडी जी 80% सीरम में प्रेजेंट होते हैं. एंटीबॉडी जी के 4 टाइप्स है: एंटीबॉडी जी फर्स्ट, जी टू, जी थ्री एंड जी फोर. एंटीबॉडी जी का हाफ लाइफ टोटल 23 डेज का है. एंटीबॉडी जी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से पास होती है. इसका मॉलिकुलर वेट 150 डाल्टन है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन. ये हमें याद रखना है, एंटीबॉडी जी इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन. एंड एंटीबॉडी जी में टोटल 3% होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. अब देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए. कंस्टिट्यूट अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. मतलब इसका परसेंटेज कितना होता है? 10 से 15% होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, मिल्क, टीयर्स, म्यूकस एट्सेट्रा. सो ये जो एंटीबॉडी ए है ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में, मिल्क में, टीयर्स में एंड म्यूकस में. इसके 2 प्रकार आते हैं: एंटीबॉडी A1, एंटीबॉडी A2. इट कंटेन्स जे चेन विच इज़ अराउंड 15 किलो डाल्टन. हमें याद रखना है एंटीबॉडी ए में जे चेन प्रेजेंट होता है एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 15 किलो डाल्टन. इंटरनल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट का 7% होता है. अब देखते हैं एंटीबॉडी यम. फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय बी सेल्स. हालांकि बी सेल जब कोई भी एंटीबॉडी बनाती है तो पहले एंटीबॉडी बनाती है वो है यम, एंटीबॉडी यम. इसका जो टोटल परसेंटेज है वो है 5 to 10%. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल्स. बी सेल के सर्फेस के ऊपर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. इस एंटीबॉडी को पेंटामेट्रिक कहा जाता है, पेंटामेरिक कहा जाता है. इसका मॉलिक्यूलर वेट 900 किलो डाल्टन है. इसमें भी जे चेन प्रेजेंट होती है. इसका हाफ लाइफ 5 दिन का है एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द नियोनट्स.
अभी देखते हैं एंटीबॉडी डी, इट कंसिस्ट अबाउट 2%, it is an important cell membrane form. It consists of 2 kappa and L lambda chains and 2 delta H chains. Antibody E, it contains 2 kappa L lambda chains and 2 H chains. इसमें क्या होता है, 2 कप्पा होते हैं, L lambda chain होता है and 2 H chains होते हैं. इसका molecular weight around 190 किलो डाल्टन है. It is involved in the allergic reactions and the carbohydrate percentage total 11% है. सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ में, जहाँ पे एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, डी एंड ई इन्वॉल्व है. अब हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है तो उन दोनों में कैसा इंटरेक्शन होता है और कैसे एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ये अब हम देखेंगे. एंटीजन मोनोमर हैज़ 2 आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स. जो एंटीजन मोनोमर है उसके पास 2 आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. इस साइट इज फॉर्म्ड बाय वी रीजन्स ऑफ अ लाइट एंड हेवी चेन. जो एक साइट है, हर एक साइट है, वो हर एक साइट क्या करती है, वी रीजन्स फॉर्म करती है. वी रीजन्स किसका, लाइट एंड हेवी चेन का. दिस परमिट्स एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू लिंक टू सिमिलर एंटीजीन्स टुगेदर. तो ये वी रीजन क्या करता है, वी रीजन परमिशन देता है एंटीबॉडी को एंटीजन के सिमिलर लिंक को अटैच होने को. कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंटीबॉडी एंड एंटीजन यूनाइट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ, तो इसके तहत लैटिस फॉर्मेशन हो जाता है. इस फिगर में हम देख सकते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. ईच टाइप ऑफ साइट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. जो हर एक साइट है एंटीजन की, वो हर एक एंटीबॉडी को बाइंड होती है. दस द लैटिस इज फॉर्म्ड थ्रू कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट एंटीबॉडीज. हालांकि ये जो लैटिस है, लैटिस फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन हर एक एंटीजन हर एक एंटीबॉडी के साइट को अटैच होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग. इसमें क्या होता है, एंटीजन के पास 2 आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स होते हैं और उसको वी रीजन भी बोल सकते हैं. और इस वी रीजन में ये एंटीबॉडी जाके बाइंड होती है और इस बाइंडिंग को बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. इस फिगर पे हम देख सकते हैं.